morning, students. Today again I am with you with the third part of your chapter Vipin Babu lapses memory. So, students, after lunch time, Vipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. दोपहर को खाना खाते वक्त विपिन बाबू ने महसूस किया कि संभवतः वह डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर सकते। वो पिछले 25 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ। जब वो अपनी कंपनी में थे, उनकी छवि एक अथक और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की थी, मतलब पूरी तरीके से डिवोटेड थे वो अपनी कंपनी के प्रति। लेकिन आज उनका सिर चकरा रहा था, मीन्स वो बार बार वही बात सोच रहे थे। Back home at 2:30, Vipin Babu lay down in bed and tried to gather his wit together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know a single incident of someone remembering everything except one particular incident, and fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. 2:30 बजे घर विपिन बाबू आ गए और बिस्तर पर लेटे रहे, मनन करते रहे। वे जानते थे कि सिर पर चोट लगने से किसी की याददाश्त जा सकती है, पर उनको ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि उनके सिर पर कभी चोट लगी हो और वो उनकी याददाश्त चली गई हो, और वह भी एक ऐसी घटना जो काफ़ी ही हाल ही के और महत्वपूर्ण हो। वो रांची जाना चाहते थे और वहाँ गए हो, कुछ किया हो और कुछ भी याद ना हो, ऐसा पूरी तरीके से असंभव था। At 7:30, Vipin Babu's servant came, announced, "Chunni Babu, sir, says it's very important." Vipin Babu knew what Chunni had come for. Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Vipin Babu knew it was not possible to do anything for him, and in fact told him so, but Chunni kept turning up like bad penny. Vipin Babu sent word that not only was it not possible for him see Chunni now, but not in several weeks. 7:30 बजे विपिन बाबू का नौकर आया और उनसे कहता है कि चुन्नी लाल आया है, तो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी किस लिए आया है। चुन्नी लाल उसके साथ स्कूल में था और उनका काफ़ी बुरा समय चल रहा था। वह नौकरी के बारे में मिलने आता रहा है। विपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ करना असंभव नहीं था, और वास्तव में उन्होंने उसे ऐसा कहा भी था, परंतु चुन्नीलाल ज़बरदस्ती आता रहा था। विपिन बाबू ने उनके नौकर को कह दिया कि जाओ चुन्नीलाल को कह दो कि अभी वो मिल नहीं सकते हैं और 2-4 हफ्ते तक और नहीं मिल पाएंगे उनसे। But as soon as the servant stopped out of the room, it struck Vipin Babu that Chunni might remember something about 58th trip. There was no harm in asking him. अब विपिन बाबू का नौकर बस उसके पास पहुंचते हैं उसे बताने के लिए, उससे पहले विपिन बाबू के दिमाग में आ गया कि यार इससे पूछ लूँ, चुन्नीलाल से पूछूँ 58 के ट्रिप के बारे में, इससे पूछूंगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। विपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Vipin Babu appear, he turned around hopefully. विपिन बाबू जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और लिविंग रूम में आ गए, और चुन्नी लाल ने जैसे ही विपिन बाबू को देखा तो वो वापस से टर्न हो गया, वो जाने ही वाला था।
Vipin Babu did not beat about the bush. Listen, Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? अब विपिन बाबू ने इधर उधर की बात नहीं करी, ही डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, और उन्होंने डायरेक्टली उससे पूछ लिया कि भाई तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो क्या तुम्हें पता है कि 58 में मैं कहीं रांची गया था क्या कभी? चुन्नीलाल सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वॉज इट 59? चुन्नीलाल ने कहा 58, ये 58 ही रहा होगा या 59, क्या था? You are sure that I did go to Ranchi? Chunni looks to admiration was not unmixed with worry. Did you mean you have doubt about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? Chunni sat down on the sofa, fixed Vipin Babu with a long head stare and said, Vipin Babu, have you taken a drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship doesn't mean much to you, but at least you had good memory. You can't really mean that you have forgotten about Ranchi trip? क्या तुम्हें विश्वास है मैं रांची गया था? चुन्नी की नज़रें हैरानी और चिंता भरी थी। आपका क्या मतलब है? क्या आपको वहाँ जाने में कोई संदेश है? क्या मैं गया था? क्या तुम्हें स्पष्ट याद है? चुन्नी सोफे पर बैठ गया और विपिन बाबू को कठोर निगाहों से देखने लगा। विपिन बाबू, क्या नशीली दवाएं या कोई चीज़ ली है क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ आप ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पुरानी मित्रता आपको अधिक मतलब की नहीं लगती, किंतु कम से कम आपके पास अच्छी याददाश्त तो है। तो चुन्नीलाल उनके पास किसी काम के लिए आया था। अब चुन्नीलाल विपिन बाबू के ऊपर ही बोलने लग गया कि यार आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, आप तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, और मुझे पता है कि आप दोस्ती लोगों से ज़्यादा नहीं करते, पर आपकी याददाश्त तो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। Vipin Babu had turned away from Chunnilal. Do you remember what my last job was? Asked Chunnilal. Of course, you worked in a travel agency. You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking from Ranchi. I went to the railway station to see you off. One of the friend in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you, you don't look too well, you know. मतलब आपको कुछ याद नहीं आ रहा? मैं आपको स्टेशन छोड़ने के लिए गया था, आपकी बोगी के अंदर पंखा चल नहीं रहा था, फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला करके पंखा ठीक करवाया था। कुछ हो रहा है क्या आपको? आप ठीक नहीं हो क्या? विपिन बाबू सीज एंड शूक हिज हेड. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. दैट मस्ट बी द रीज़न. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. काफ़ी समय से बहुत कठिन काम किया है, तो हो सकता है इसकी वजह से हो रहा होगा, मैं किसी स्पेशलिस्ट से मिलता हूँ। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशंस विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब. विपिन बाबू की कंडीशन देख करके वो चुन्नीलाल जिस काम से आया था ना, वो काम भी उसने बताया नहीं, और उनकी कंडीशन देख करके वो वहाँ से चला गया. Paras Chandra was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose. He became thoughtful when he heard about Vipin Babu's symptom. Look, Dr. Chandra, said Vipin Babu desperately, you must cure me of his
horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. मतलब वो उनको कहते हैं डॉक्टर चंद्रा को कि आप मुझे इसे ठीक कर दो, मुझे पता नहीं कौन सी भयानक बीमारी हो गई है और मेरे ना काम पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसका, तो मुझे आप ठीक कर दो. डॉक्टर चंद्रा shook his hand. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours, frankly. तो डॉक्टर चंद्रा ने अपने सिर पे हाथ रख लिया और कहते हैं कि चौधरी आपके जैसा तो मैंने पहली बार आज तक कोई केस ही नहीं देखा. दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई हैव वन सजेशन. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, बट इट्स वर्थ अ ट्राई. इट कैन डू नो हार्म. तो वो चौधरी से कहते हैं कि एक आइडिया है, एक सजेशन है, पर पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, पर इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा. विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एक्साइटिंगली. एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंद्रा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन. यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you your trip. This is not impossible. More than that I can't do at the moment. I am prescribing a nerve tonic or tranquilizers. Sleep is essential, or the symptom will get more pronounced. भाई मेरी सलाह है कि आप एक काम करें, आप रांची वापस से जाएं और आप वहाँ जो देखोगे तो वहाँ सब चीज़ें से देखोगे तो आपको वापस से याद आ जाएगा. अभी तक के लिए अभी तो मैं आपको कुछ दवा लिख रहा हूँ और नींद आवश्यक है. नींद ही आपको इस सब चीज़ों से अच्छे से उभार सकती है. आप अच्छी नींद लें. विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then processed the first class ticket for Ranchi for the same evening. विपिन बाबू ने अगले दिन बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और वो उन्होंने नाश्ते के बाद उन्हें ऑफिस में फ़ोन किया और कुछ निर्देश दिए और उन्होंने फर्स्ट क्लास का एक टिकट बुक कर दिया रांची जाने के लिए उसी दिन शाम का. तो स्टूडेंट्स देखा आपने किसी के कहने पर कि आप वहाँ गए थे, किसी ने कितनी टेंशन ले ली. सो इट हैपन्स, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज द पार्ट 3 ऑफ विपिन बाबूज लैप्सेस मेमोरी. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस चैप्टर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. बाय बाय.